Good morning student. Today we will see next point, application of derivative in economics. So here we use some economical concepts. So see first point, demand function. So demand function generally denoted by capital D which is equal to f of p. Marginal demand, when we have to find here marginal demand, so its formula is dm equal to dd by dp. That means here we differentiate demand with respect to p. Next, second, supply function. Supply function S equal to G of P. When we find marginal supply, we get ds upon dp. That means here we differentiate S with respect to P. Third, total cost function. Cost function denoted by C equal to Fx, where X is number of items produced. Marginal cost, if we have to find here marginal cost, it is denoted by Cm. And here we find dc by dx. That means differentiate c with respect to x, then we get here marginal cost. Now the next point is average cost. Average cost is denoted by ca. Average का a यहाँ पे आएगा, marginal का m यहाँ पे आएगा. So ca का formula c upon x. That means here we divide total cost c by x. We get here average cost. Fourth, total revenue. So formula of total revenue R equal to P into D. P means price, D means demand. दोनों का प्रोडक्ट अगर फाइंड आउट करोगे तो आपको यहाँ पे रेवेन्यू R मिल जाएगा. नेक्स्ट, एवरेज रेवेन्यू. So the formula of average revenue RA, which is equal to R upon D. Here R means revenue, D means demand. So we know that the formula of revenue is P into D. So when we substitute this value here, we get P into D upon D. So D get cancelled, which is equal to P. That means average revenue, which is equal to price. And next point, total profit. Profit which is equal to R minus C. Again here R means revenue and C means cost. Subtraction of revenue and cost, we will get here profit. Profit are denoted by pi also. So today we will see these 5 points. Now see the exercise 4.4. In exercise 4.4, first question, the demand function of commodity at price is given by D equal to 40 minus 5p upon 8. Check whether it is increasing or decreasing function. That means here we have to check only the function is increasing or decreasing. तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के डेफिनेशन हमने देखे हैं. अ फंक्शन f इज सेड टू बी इंक्रीजिंग व्हेन f डैश c ग्रेटर देन 0 एंड द फंक्शन f इज सेड टू बी डिक्रीजिंग व्हेन f डैश c लेस देन 0. तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. अगर वो ग्रेटर दैन 0 है दैट मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अगर वो लेस दैन 0 है दैट मीन्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग. तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करो. यहाँ पे फंक्शन p में है, मतलब आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू p करना है और फिर आपको जो आंसर मिलेगा वो ग्रेटर दैन 0 है या लेस दैन 0 है, वो देख के आपको डिसाइड करना है फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ सी द क्वेश्चन सेकेंड, द प्राइस p फॉर डिमांड d इज गिवन एज p इक्वल टू दिस इक्वेशन एंड फाइंड t d फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग. तो यहाँ पे आपको गिवन पार्ट है प्राइस इज इंक्रीजिंग और आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ डी. सो हियर p इज गिवन. सो फर्स्ट वी राइट हियर द प्राइस p is given 183 minus 120d minus 3d square. Now for finding value of d, first we have to find here first order derivative. That means dp by dd हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा और यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया है इंक्रीजिंग, मतलब वो ग्रेटर देन 0 होगा और हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी. सो फर्स्ट वी राइट गिवन पार्ट p इक्वल टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू d. आपका जो फंक्शन है वो d में है तो इसलिए आपको d से ही डिफरेंशिएट करना है. तो जब आप d से डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आएगा dp बाई dd. अब फर्स्ट एग्जाम्पल इसलिए डिटेल में लिखती हूँ, बाकी डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है. So dd of 183 minus 120 constant, dd of d minus 3 constant
डी 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 ऑफ डी स्क्वायर। वही सेम फॉर्मूले जो हमने डेरिवेटिव में देखे हैं, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, वही यूज़ करना है, बस x की जगह पे यहाँ पे d है। तो देखो हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x 2x। सो सिमिलर here we write derivative of constant is 0, 120 into derivative of d with respect to d 1, 3 as it is, derivative of d square with respect to d is 2d. Now simplifying it we get dp by dd which is equal to 0 निकाल दो, 120 into 1, 120 minus 3 into 2, 6d. So here we get first order derivative. Now as we know that price is increasing, price is increasing, therefore dp by dd greater than 0, first order derivative greater than 0 आएगा, price is increasing दिया, that means 120 minus 6d greater than 0। अब इसमें क्या करना है, माइनस 6d को RHS में ट्रांसफ़र करोगे तो 120 ग्रेटर देन 6d, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई इधर ट्रांसफ़र करो, 120 डिवाइडेड बाय 6 ग्रेटर दैन डी, 6 से डिवाइड करोगे 20 ग्रेटर दैन डी, दैट मीन्स हियर प्राइस इज इंक्रीजिंग व्हेन डी लेस देन 20 है। सो यू कैन राइट हियर लाइक दिस, डी लेस देन 20, यही लिखा है मैंने यहाँ पे, बस यहाँ पे डी आर एच एस में, यहाँ पे एल एच एस में है, डी लेस देन 20 है, यहाँ पे भी मैंने डी लेस देन 20 लिखा है। अब यहाँ पे एक और मिस्टेक्स जो जनरली स्टूडेंट से होती है वो देखो, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने 120 माइनस 6d, तो 6d को मैंने आर एच एस में ट्रांसफ़र किया। सपोज़ अगर आप उल्टा करते हो, मतलब माइनस 6d इधर ही रखते हो और 120 को RHS में ट्रांसफ़र करते हो, इट बिकम्स माइनस 120, ठीक है। तो सबसे पहले आपको माइनस साइन निकालना पड़ेगा, तो जब आप इसका माइनस साइन निकालते हो दैट मीन्स 6d 120 दोनों का माइनस साइन निकालोगे तो ये जो ग्रेटर दैन का सिंबल है इट बिकम्स लेस दैन, तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा जब आप ये माइनस साइन निकालते हो दोनों तरफ का, और उसके बाद 6 से इधर डिवाइड करो तो आपको ये सेम मिल जाएगा आंसर, डी लेस दैन 20 है। समझ में? बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं और माइनस साइन डायरेक्ट निकाल देते हैं, तो आपको ये रॉन्ग आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, अगर आपको माइनस साइन निकालना है तो ये लेस दैन का ग्रेटर दैन बन जाएगा, या फिर बेस्ट वे जो टर्म निगेटिव है उससे ही दूसरी तरफ शिफ्ट करो, तो आपका आंसर रॉन्ग होने की चांसेस नहीं होंगे। So here we get the answer of second question. Price is increasing when d is less than 20. Now see the third question. The total cost function for production of article is given as C equal to 100 plus 600x minus 3x square. Find the values of x for which total cost is decreasing. तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, टोटल कॉस्ट इज़ डिक्रीजिंग, और आपको कॉस्ट सी की वैल्यू यहाँ पे दी है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स। सेम एग्जांपल जो अभी सॉल्व किया हमने डी में, वही एग्जांपल एक्स में है। यहाँ पे हमें पी को डिफ्रेंशिएट करना था, यहाँ पे हमें सी को डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपको दिया था प्राइस इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे दिया है कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। सेम वैसे ही एग्जांपल है, बस डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिखती हूँ, डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ। क्वेश्चन आपके पास है, सो फर्स्ट वी राइट हियर गिवन सी इक्वल टू 100 plus 600x minus 3x square. So here we differentiating with respect to x we get, तो यहाँ पे ऑलरेडी x ही है, so we get here dc by dx. So we know that derivative of constant is 0, 600 constant है, derivative of x is 1 minus 3 as it is, derivative of x square is 2x. So here we get dc by dx which is equal to 600 minus 3 into 2, 6x.
So we know that total cost is decreasing. That means dc by dx लेस देन ज़ीरो, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन ज़ीरो है. दैट मीन्स 600 माइनस 6x लेस देन ज़ीरो. सो माइनस 6x को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 600 लेस देन 6x. सो 6 से डिवाइड करो. सो हियर वी गेट 100 लेस देन x. So the final answer is, therefore total cost is decreasing when x greater है या less है तो greater है, x is greater than 100. Now the question number 4. See, the manufacturing company produces X items at the total cost of rupees 180 plus 4x. The demand function for this product is P 240 minus X. Find X for which revenue is increasing, profit is increasing. अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, तो दोनों हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन पार्ट. सो क्वेश्चन नंबर 4, गिवन पार्ट हमें यहाँ पे दिया है टोटल कॉस्ट. सो फर्स्ट वी राइट हियर गिवन C इक्वल टू 180 प्लस 4x. नेक्स्ट डिमांड X आइटम्स, सो D इक्वल टू X आइटम्स. तो ये भी लिखना है क्योंकि रेवेन्यू के लिए हमें ये यूज़ होगा. Next price P, so P equal to 240 minus X. So these three are the given parts. Now first we find revenue is increasing. So first find out करना है revenue is increasing. So first we find value of X for revenue is increasing. So for that we have to find here revenue. We know that the formula of revenue R equal to P into D. So P 240 minus X and D X. So multiplication 240x minus x square. So here we get revenue. Now differentiating this revenue with respect to X we get, so dr by dx equal to 240 is constant, derivative of x 1 minus derivative of x square is 2x. So here we get dr by dx which is equal to 240 minus 2x. Now we know that revenue is increasing, therefore revenue is increasing. So here we write dr by dx greater than 0, increasing के लिए greater than 0. That means 240 minus 2x greater than 0. 2x को shift करेंगे, 240 greater than 2x, 240 by 2 greater than x, that means 120 greater than x. So here we write, therefore revenue is increasing when x less than 120. X less than 120. Now the second part is profit is increasing. Profit is increasing. So first we find here profit. We know that the formula of profit pi equal to R minus C. So here we find R. So right here equation number 1. So pi equal to R is 240x minus x square and C is 180 plus 4x. तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट लिखो तभी करेक्ट आंसर रहेगा. नाउ ब्रैकेट निकाल दो. सो पाई इक्वल टू 240x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180 माइनस 4x.
now subtracting minus x square 240x minus 4x 236x minus 180. So here we get the profit. Now differentiating with respect to x we get so d pi by dx, which is equal to derivative of minus x square is 2x, 236 constant, derivative of x is 1 and derivative constant is 0. So here we get d pi by dx equal to minus 2x plus 236. Now we know that profit is increasing. So profit is increasing. So d pi by dx greater than 0. So minus 2x plus 236 greater than 0. So 2x negative इधर ट्रांसफर करो, 236 greater than 2x. So 236 divided by 2 greater than x, 2 से इसको डिवाइड करोगे 118. So here we write profit is increasing when x less than 118. So here we finish example number 4. Now see the example number 5. For manufacturing x units, labor cost is 150 minus 54x, processing cost is x square, price is 10800 minus 4x square. Find the value of x for which total cost is decreasing, revenue is increasing. तो अभी जैसे हमने सॉल्व किया है प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, तो वैसे आपको रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग यहाँ पे फाइंड आउट करना है और टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग फाइंड आउट करना है. रेवेन्यू का फॉर्मूला आपको पता है P इंटू डी. अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो फाइंड आउट करना है आपको, तो यहाँ पे दो कॉस्ट दिए, लेबर कॉस्ट एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट. तो आप क्या करोगे, इन दोनों की एडिशन करोगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा. तो सिंपल क्वेश्चन है ये, मैं सॉल्व करके नहीं देने वाली हूँ, आप लोग सॉल्व करेंगे. बस इतना बताती हूँ, टोटल कॉस्ट विच इज़ इक्वल टू आएगा लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट. तो जितने भी कॉस्ट आपको दिए होंगे उन सभी की एडिशन करो तो आपको वो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा. तो आपको C मिल जाएगा, लेबर कॉस्ट है 150 माइनस 54x एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट है x स्क्वायर. तो टोटल कॉस्ट C आपको मिल गया. तो उसके आगे का आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग. नेक्स्ट है रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग. तो रेवेन्यू का फॉर्मूला आपको पता है P इंटू डी. यहाँ पे D मीन्स x आएगा, P दिया है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो और फिर आगे का आप सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स आर्टिकल्स C इज गिवन, फाइंड x फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एवरेज कॉस्ट निकालना है. तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो, मैं बस आपको हिंट देती हूँ. सो फर्स्ट राइट डाउन गिवन C इक्वल टू 47x प्लस 300x स्क्वायर माइनस x रेस टू 4. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकालना है जिसका फॉर्मूला है CA इक्वल टू C अपॉन x. तो CA मतलब क्या करना है, इस C को x से डिवाइड करना है. तो C को हर एक टर्म को x से डिवाइड करो. तो आपको क्या मिल गया, CA इक्वल टू, ये x कैंसिल हो जाएगा 47, यहाँ पे मिलेगा 300x और यहाँ पे मिलेगा x क्यूब. ठीक है, अब इसे आप डिफरेंशिएट करोगे आपको मिल जाएगा DCA बाई DX. इसका आंसर निकालो. उसके बाद क्या दिया है, दोनों फाइंड आउट करना है, एक बार इंक्रीजिंग के लिए एक बार डिक्रीजिंग के लिए. तो दोनों वैल्यू आपको मिल जाएंगे यहाँ पे. तो ये ट्राई करके देखो. और एक्सरसाइज 4.4 इसमें से 6 तक ही एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है. आगे के हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.